سب سے پہلے بات کریں گے میئر کراچی کے لیے انتخابی دنگل سچ کیا ہے۔ پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ میئر کے لیے مرتضی وہاب اور حافظ نعیم الرحمان آمنے سامنے ہے۔ ووٹر کی کل تعداد 366 ایوان میں 333 اراکین کی موجودگی ہے۔ 33 اراکین غیر حاضر بھی بتائے جا رہے ہیں۔ میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 184 نشستیں درکار ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کی 155 اور جماعت اسلامی کی 130 نشستیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی ارکان کی تعداد 173 ہے۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ حامی ووٹر کو آڈیٹوریم کی ایک جانب کر کے گنتی کی جائے گی۔ ہر رکن رجسٹر میں اپنے نام کے سامنے انگوٹھے کا نشان لگائے گا۔ ہر رکن دستخط بھی کرے گا اور ان کے انگوٹھے پر انمٹ سیاہی بھی لگائی جائے گی۔ ڈیپٹی میئر کا انتخاب بھی اسی طرح ہوگا۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہنگامہ کرنے اور رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے 30 سے زائد یو سی چیئرمینوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے۔ گروپ لیڈر اسد امان جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کریں گے۔ اراکین کا موقف مزید جانیں گے اقتدار انور سے، جی بتائیے گا۔ اپوزیشن آپ کا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کورم پورا نہ ہوا تو پھر یہ بات طے تھی کہ 184 کا جو ہندسہ ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اگر 366 اراکین پورے آ جاتے تو پھر 184 کی جو شرط ہے وہ لاگو ہوتی۔ اب ایسا نہیں ہے کیونکہ 366 اراکین میں سے 333 اراکین حاضر ہیں، 33 اراکین جو ہیں وہ نہیں آئے، لہٰذا اب جس کی اکثریت ہوگی وہ میئر کراچی کا تاج اپنے سر پر سجا لے گا۔ سارے معاملے میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عاجز جمالی بھی موجود ہیں۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اور بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک لبیک پاکستان کے اتحاد کے 173 اراکین سارے کے سارے ایوان کے اندر موجود ہیں۔ ایک خاتون کو ویل چیئر اور ایک کو اسٹیچر پر بٹھا کر جو ہے ایوان کے اندر لایا گیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کے 160 اراکین جو ہیں ایوان کے اندر موجود ہیں۔ یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقابلہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے خبر دی تھی فارورڈ بلاک کے حوالے سے۔ عاجز صاحب، جس طرح صبح ہی سے چیمگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ جو 33 یا 36 یا 38 اراکین جو ہیں وہ ایبسنٹ رہیں گے، نہیں آئیں گے، آپ نے بھی خبر دی اور بالکل ویسے ہی ہوا، تو کیا بتائیں گے ہمیں ناظرین کی معلومات؟ جی بالکل، 33 تقریباً لوگ نہیں آئے ہیں۔ 33 نہیں آئے تو لازمی ہے یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ پوزیشن واضح ہو گئی ہے کہ یہ 33 ووٹ جماعت اسلامی کے کم ہو گئے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کے 173 ووٹ موجود ہیں ایوان میں اتحاد کے ساتھ، یعنی ان کے اتحادی ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا اتحاد تھا وہ انٹیکٹ نہیں رہ سکا، ورنہ اگر 62 ووٹ آتے پی ٹی آئی کے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوزیشن واضح تھی، لیکن اب وہ سسپینس جو تھا وہ تو نہیں رہا تقریباً، کیونکہ 33 ووٹ غیر حاضر ہونے کی وجہ سے پلڑا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری نظر آ رہا ہے ایوان کے اندر۔ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پولنگ شروع ہونے سے قبل حافظ نعیم الرحمان نے ایک اعتراض کیا تھا کہ پہلے ووٹرز کو پورا لایا جائے پھر پولنگ شروع کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو مقررہ وقت تھا اس سے بھی آدھا گھنٹہ زیادہ دیا گیا تھا، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، آپ نے دیکھا کہ 11 بجے کے بعد تقریباً 10 کے دروازے بند کیے گئے، تو ایک اضافی وقت جیسا کہ دیا گیا تھا اگر اپنے ووٹرز کو کوئی لاتا۔ یہاں وہ اہم بات یہ بھی ہے کہ جو 3 ووٹرز جو جیلوں میں تھے ان کو بھی لایا گیا، یعنی فردوس شمیم نقوی کے ساتھ 3 اور لوگ جو جیلوں میں تھے ان کو بھی یہاں لایا گیا۔ باقی جن لوگوں کو نہیں آنا ہوگا تو ان کو کوئی زبردستی۔ آپ نے جو آج صبح خبر دی تھی کہ اسد امان نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی ہاں بالکل، آج ہی یہ اعلان ہوا۔ ویسے تو یہ پرانی خبر تھی، ہم نے 138 کا فگر دیا تھا کہ 138 لوگ غیر حاضر ہوں گے، لیکن کچھ ان میں سے پھر منت سماجت کے بعد 4-5 لوگ آ گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 33 لوگ ابھی بھی، یعنی 38 میں سے 33 غیر حاضر ہیں۔ تو آج صبح ایک اور اعلان آیا کہ جی اسد امان ہمارا پارلیمانی لیڈر ہوگا۔ فارورڈ بلاک ہم نے بنا لیا ہے کیونکہ 30 سے زائد لوگ ہیں، تو اب یہ قانونی فارورڈ بلاک بن چکا ہے لوکل باڈیز ایکٹ کے تحت۔ تو انہوں نے 33 لوگوں نے اب فارورڈ بلاک بنا لیا، وہ یہاں پہ نہیں پہنچے، تو یہ 33 ووٹ تو گھٹ گئے حافظ نعیم الرحمان کے۔ یہاں میں آپ کو روکوں گا، یہاں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے ہم آپ کو بتائیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے جو اندر جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ بات طے تھی، جو امینڈمنٹ کی گئی کہ اگر کسی جماعت کے نصف سے زائد اراکین
کوئی فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو انہیں اس جماعت کا فارورڈ بلاک گنا جائے گا. مثال کے طور پر تحریک انصاف کے 62 اراکین کی ایوان کے اندر حاضری ہونا تھی. اگر ان میں سے 20 لوگ یا 30 لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر رہتے تو وہ مستقبل میں ڈی سیٹ ہو سکتے تھے. لیکن نصف سے زائد یعنی کہ جو لوگ 33 ہیں وہ نہیں آئے, جو کہ تعداد کے نصف سے زائد ہیں, لہٰذا انہیں سٹی کونسل کراچی میں فارورڈ بلاک کے طور پر گنا جائے گا. سندھ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے 2013 کا, اس میں 2016 میں امینڈمنٹ کی گئی, 2018 میں امینڈمنٹ کی گئی اور 2023 میں جو امینڈمنٹ کی گئی اس کے تحت اب یہ لوگ ڈی سیٹ نہیں ہو سکیں گے. اس کی مثال پاک سرزمین پارٹی کی صورت میں موجود ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ الگ ہو کر انہوں نے پی ایس پی کا ایک فارورڈ بلاک بنایا تھا اور اسی فارورڈ بلاک کے تحت جو ہے وہ آخر تک ایوان کے اندر موجود رہے. تو اب وہ اراکین جو کہ آج حاضر نہیں ہوئے انہیں پاکستان تحریک انصاف چاہ کر بھی ڈی سیٹ نہیں کروا سکتی, کیونکہ قانون کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اگر نصف سے زائد اراکین چاہیں تو وہ اپنا فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں. اس کی مثال موجود ہے. ایک بار پھر عزیز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ہلچل ہوئی تھی, وہاں پر گئے تھے, یہ کیا ہلچل ہوئی ہے اور کس طرح یہ انتخابی عمل چل رہا ہے؟ جی دیکھیں, اندر تو پولنگ جاری ہے. انور اپنی آپ گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیے گا, آپ کے بعد دوبارہ ہم پھر آئیں گے. یہاں بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ میئر اور ڈیپٹی میئر پیپلز پارٹی کا جالا منتخب ہو گیا ہے. الیکشن میں جماعت اسلامی کو شکست ہوئی ہے. اگر احتجاج کیا گیا یا قانون ہاتھ میں لیا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا. الیکشن میں جماعت اسلامی کی شکست دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اور مجھے چھوڑ دیں, آپ لوگ نمبر چیک کر لینا کہ آج کس کے کتنے ممبرز آئے ہیں. تو الیکشن تو ہو چکی ہے, نتیجہ آ چکا ہے. مرتضی وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا اور سلمان مراد پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہو چکے ہیں. پوری قوم کو میں بتا دوں کیونکہ نمبرز جو ہے اٹینڈنس سامنے آ چکی ہے. اگر اب جماعت اسلامی کوئی گڑبڑ کرتی ہے, کوئی غنڈہ گردی کرتی ہے, تو یہ چیز صاف پیغام ہے کہ حکومت قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں دے سکتی. پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, ہمیں گالیاں دینی ہیں, آپ نے بدتمیزی کرنی ہے تو آپ کریں, جہاں مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ کریں. لیکن اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا, لیکن اگر جماعت اسلامی نے کہیں پہ بھی کوئی انتشار پھیلایا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا, قانون کے دائرے میں رہ کر آئے گا. تو جماعت اسلامی کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی احتجاج کریں جمہوری انداز میں کریں, جو بھی تقاریر کریں جمہوری انداز میں کریں, جو بھی آپ نے تنقید کرنی ہے وہ جمہوری انداز میں کریں. ہمیں گالیاں بھی دینی آپ بھلے دے دیں, لیکن اگر آپ نے کہیں پہ توڑ پھوڑ کی, قانون ہاتھ میں لیا تو سوری, تو پھر آپ کو جو ہے وہ قانون کا راستہ جو ہے. شرجیل انعام میمن کی گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں, صوبائی وزیر سعید قانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میئر ڈیپٹی میئر کا انتخاب بھاری اکثریت سے جیتنے جا رہی ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں. کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہوا ہے, اور جو میری اب تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق 331 ارکان جو ہیں اس ہال کے اندر موجود ہیں, اور 11 بجے چونکہ داخلہ بند کر دینا تھا اور 11 بجے کے بعد کسی ممبر کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ داخل ہوں. تو 331 ممبران میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 173 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے اراکین ہیں. اور اگر 331 میں سے 173 کو آپ مائنس کر دیں تو باقی جو ہیں وہ 158 بچتے ہیں. تو اگر یہ تمام کے تمام لوگ بھی حافظ نعیم الرحمان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو جو آج کا نتیجہ ہے میری نظر میں اب تک کی جو میری معلومات ہے اس کے مطابق 173 اور 158 کا بنتا ہے. اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبلی جو ہے وہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشنز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے شام میں مکمل ہوگا, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کراچی کی شہریوں کے ساتھ مل کر جشن بنائیں گے. میں تمام لوگوں کو ایڈوانس میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, خاص طور پر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, ادی فریال طالپور صاحبہ کو, چیف منسٹر سندھ کو, مرزا وہاب کو, نثار احمد کھوڑو صاحب کو, سلمان مراد کو, اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو جنہوں نے بہت محنت کی اور تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک کی بلدیاتی الیکشن کی جو کمپین تھی اس میں حصہ لیا, اور ایک ایسا کام جو ہم سب کا خواب تھا
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में सबसे बड़ी पार्टी बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची। मेयर का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। अभी इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, हम कुछ बात कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से कि ज़्यादा निस्फ अरकान अगर चाहें तो अपनी मर्जी से शिरकत नहीं कर सकते, तो ये सारा समझाइएगा ज़रा, ये क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, उससे पहले मेरे पास आपके लिए खबर है। हमारे रिपोर्टर अजीज जमाली वहाँ गए थे, कुछ वहाँ पे हुआ है, क्या हुआ ये मामला, वहाँ क्यों गए थे? बस थोड़ी सी हलचल हो गई थी तो हमने समझा कि शायद लोग बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर के उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, वो थोड़ी देर के लिए पोलिंग स्टेशन से बाहर आए। उन्होंने विक्ट्री का निशान दिखाया और हंसते मुस्कुराते हुए वो वापस चले गए। मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर इशारा दिया है कुछ मतलब मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं, चूँकि हम जैसे बता रहे थे अपने नाजरीन को कि 33 वोट कम है हाफिज नईम के बजाय जो नज़र आ रहा है। जब 33 वोट कम है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, जिस वजह से मुर्तज़ा वहाब की मुस्कुराहट ने उस बात को और साबित कर दिया कि हम जीत रहे हैं। लेकिन बहरहाल उधर से सईद गनी ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, ट्वीट जारी की है, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन अक्सरियत के साथ जीतने जा रही है। वो भी एक मुस्कुराहट थी एक तरह की। तो बहरहाल यहाँ पे अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग का अमल जारी है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों में मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं। अजीज भाई, एक मिनट में आपको यहाँ ये नाज़रीन की मालूमात के लिए हम मालूमात शेयर करते चलें कि इस टाइम ऐवान के अंदर जो है वो शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो रहा है। जैसे ही तमाम लोग जो हैं वो ऐवान के अंदर जाकर बैठे तो उनमें इस बात का फैसला किया गया कि जनाब जो मुर्तज़ा वहाब के लोग हैं वो सीधे हाथ पर बैठेंगे, जिनका ताल्लुक हाफिज नईम और इत्तेहाद से है वो उल्टे हाथ पर बैठेंगे। सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब के जो सपोर्टर हैं उनको गिना गया और गिनने के बाद इस बात का फैसला किया गया, जिस तरह हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि शो ऑफ हैंड में एहतियात के पेश नज़र, क्योंकि दोनों जमातें कांटे के मुकाबले की तवक्को कर रही हैं, तो इस बात का फैसला किया गया कि जो नंबर शुमार हैं, यानी कि नंबर 1 से नंबर 50 तक के जो लोग हैं उन्हें एक एक करके बुलाया जा रहा है और वो आकर रजिस्टर में, अगर वो मुर्तज़ा वहाब के हैं तो मुर्तज़ा वहाब का रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें अपना नाम लिखते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, अपनी मुताल्लिका यूनियन कमेटी का नंबर और टाउन का नाम लिखते हैं और फिर अपना अंगूठा नीली स्याही वाला जो है उस रजिस्टर पर लगाते हैं, जिसके बाद एक वोटर की खास स्याही होती है वो उनके अंगूठे पर लगाई जाती है। ये अमल जो है इस टाइम अंदर किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कल को अगर कोई रुकन होती है अंगूठे पे लगाई जाती है और मुर्तज़ा वहाब ने विक्ट्री का निशान बनाया है, स्माइल पास है, बाहर निकले हैं और उनकी स्माइल बता रही है कि जीत के करीब हैं। और अभी आपको बताएं कि जीत पीपल्स पार्टी की होगी। मेयर के लिए पीपी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब भी पुरुमीद है और कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना की जाए, वोटर्स को हथकड़ियां लगा कर लाने को गलत अमल करार दे दिया है। समझता हूँ कि आज का टारगेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम चीज़ें पीसफुल हो। क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से कहता है। ये कानून साज असेंबली ने फैसला कर दिया, इसका फैसला मुझे रीगल चौक पे नहीं करना, इसका फैसला मुझे फवारा चौक पे नहीं करना। और मैं समझता हूँ हम सबको अपनी इन चीज़ों से दूर रह के इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। मैंने खुद देखा, फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, मैं खुद उनसे खुद में मिलने गया, बाकी एक रुकन को मैंने जो खुद देखा, मैं समझता हूँ गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बात करता हूँ, हर किसी का इज्जत एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हो, हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम। मेरा किसी भी पीटीआई रुकने असेंबली के साथ कोई राब्ता नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से मेरा ज़ाती रिश्ता है, मेरे वालिदैन के वो कॉलीग रहे यूनिवर्सिटी में, जब वो आए मैं मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू आपने सुनी। हाफिज नईम क्या कहते हैं आपको बताएं कि वो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, इंशाल्लाह मेयर जमात इस्लामी का होगा। नामजद उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि सबको वोट कास्ट करना चाहिए, हमारे पास 192 नंबर्स हैं, हर लिहाज से हम कामयाब हो चुके। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे तो नंबर पूरे हैं ना 192, और ये कोई वाला इलेक्शन थोड़ी है कि घर से लोग आएंगे वोट डालेंगे। तो मुंतखब लोग हैं, नंबर पूरे हो चुके हैं, 2 पार्टियां हैं, दोनों की लीडरशिप ने कह दिया है, तो अब कोई दूसरा जवाब ही नहीं है। सबको प्रोड्यूस करना जिम्मेदारी
الیکشن کمیشن کی ہے. سب کو یہاں پر آنا چاہیے, اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. ساری ڈیفیکشن کلاز لاگو ہے, آئین اور قانون موجود ہے, سب چیزیں موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے اس میں کوئی سوائے اس کے کہ کارروائی ہے. جماعت اسلامی تو کامیاب ہو چکی ہے آلریڈی, 192 نمبرز ہمارے ہیں. تو جمہوریت کے اعتبار سے, ریاضی کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے, آئین اور قانون کے اعتبار سے ہم جیت چکے ہیں. اصل بات آئین اور قانون کے مطابق ہوگی نا, تو آئین قانون کے مطابق تو جو نمبرز ہیں اس کے مطابق چاہیے آ کر ووٹ ڈالنا چاہیے. اقتدار انور بھی ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے مارکے کے لیے مرتضی وہاب کو انتخابی میدان میں اتار دیا ہے. مرتضی وہاب کا جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. وہ شہر کے سیاسی منظرنامے میں پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما سمجھے جاتے ہیں. مرتضی وہاب کی زندگی کا خاکہ دیکھتے ہیں عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں. طبیعت, نرم لہجے اور مدلل بات کرنے والے مرتضی وہاب کا بچپن کراچی میں گزرا. وہ 25 دسمبر 1983 کو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے وہاب صدیقی کے گھر پیدا ہوئے. ان کی والدہ فوزیہ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرم رہنما رہ چکی ہیں. مرتضی وہاب نے جامعہ کراچی سے BCom کرنے کے بعد LLB کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف لندن میں داخلہ لیا. بعد ازاں لنکولنسن سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی. وہ 2015 سے سیاست میں سرگرم ہوئے جب انہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر مقرر کر دیا گیا. 2017 میں مشیر برائے قانون اور اینٹی کرپشن بنے, جبکہ 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو سینیٹر منتخب کروایا. مرتضی وہاب مختلف محکموں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر رہے, جبکہ 2021 سے حکومت سندھ کے ترجمان اور مشیر قانون ہیں. وہ 5 اگست 2021 سے 8 دسمبر 2022 تک ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن رہے, جہاں سے مستعفی ہو گئے تھے. انہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی حلقہ 111 سے حصہ لیا اور 8500 سے زائد ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے. بیرسٹر مرتضی وہاب پیپلز پارٹی میں دھیمی طبیعت اور مدلل بات کرنے والے رہنما تسلیم کیے جاتے ہیں. کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد بیرسٹر مرتضی وہاب کے میئر بننے کی صورت میں شہر کے مسائل حل ہونے کی امید رکھتی ہے. میئر منتخب ہونے کی صورت میں مرتضی وہاب کو شہر قائد میں پیپلز پارٹی کا پہلا میئر منتخب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوگا. عاجز جمالی, سٹی 21. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو بتائیں, میئر کراچی کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی نے اپنے امیر کراچی کو اتار دیا ہے. حافظ نعیم الرحمان کی نامزدگی کو ان کے بلدیاتی نظام کے لیے سندھ اسمبلی پر دھرنے, کراچی کی مردم شماری, گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے توانا آواز اٹھانا کہا جاتا ہے. ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں سید نعمان گل کی رپورٹ میں. کی سیاست میں سرگرم حافظ نعیم الرحمان 1 دسمبر 1970 کو حیدرآباد کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے. پرائمری تعلیم نور اسلام اسکول لطیف آباد اور سیکنڈری تعلیم علامہ اقبال اسکول لطیف آباد سے مکمل کی. میٹرک کے بعد 1989 میں کراچی آ گئے. 1991 میں گورنمنٹ کالج شپ آنرز کالج سے پری انجینئرنگ میں انٹرمیڈیٹ کیا. NID یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ اور جامع کراچی سے اسلامی تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. حافظ نعیم الرحمان نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ 14 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا. حافظ نعیم الرحمان نے 1995 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی. وہ 2 سال تک اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے. 2000 میں وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے. حافظ نعیم 2013 میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے اور گزشتہ 10 سال سے مسلسل اس عہدے پر فائز ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی طویل عرصے سے کراچی کی سیاست کی توانا آواز ہیں. شہر کے مسائل اور عوام کے حقوق کے حصول کے لیے بیک وقت کے الیکٹرک واٹر بورڈ, نادرا, سوئی سدرن گیس سمیت مختلف عوامی مسائل کے لیے دھرنوں, مظاہروں, حقوق کراچی مارچ کی صورت میں کراچی کے مظلوم عوام کا مقدمہ تسلسل سے لڑ رہے ہیں. شہر قائد کے مکینوں کے ہر فورم پر بولنے والے حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی بن پائیں گے یا نہیں, یہ فیصلہ کل ہو جائے گا. سیاسی منظر نامے سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں سمندری طوفان بیپر جوئے کی. پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے. شام میں کیچی بندر سے ٹکرائے گا. طوفان کے گرد 30 فٹ لہریں بلند 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب میں موجود طوفان کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. سمندر میں طغیانی ہے, لہریں بے قابو ہو کر آبادی میں جانے لگی ہیں. چشمہ گوٹ, الیاس کوٹ, مبارک ولیج, ٹرٹل بیچ اور ہاکس بے کی سڑک پر سمندر کا پانی آ گیا ہے. طاقتور لہروں نے ساحل پر بنے متعدد ہرٹز کی دیواریں گرا دی ہیں. کراچی میں آج سے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے. آپ کو سمندری طوفان بیپر جوائے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے. شام میں کیٹی بندر سے ٹکرائے گا. طوفان کے گرد 30 فٹ لہریں بلند ہیں. 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب میں موجود طوفان کے اثرات واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں.
समंदर में तुग़यानी भी आ गई है। लहरें बेकाबू होकर आबादी में जाने लगी हैं। चश्मा गोट, इलियास कोट, मुबारक विलेज, टर्टल बीच और हॉक्स पे की सड़क पर समंदर का पानी आ गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय कहाँ पहुंचा और उससे कराची को कितना खतरा है? तूफान की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारी साथी एंकर सना सदीक बताएंगी। और जी बताइएगा। हीरा अरब में कई रोज तक कुव्वत पकड़ने के बाद साइक्लोन में तब्दील होने वाला बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिली इलाकों से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान की लाइव ट्रैकिंग में जैसे कि देखा जा सकता है, इंतहाई खतरनाक तूफान कराची से इस वक्त दूर निकल गया है। गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान रुख तब्दील करते हुए शुमाल मशरिक़ की जानिब बढ़ रहा है। कराची से तूफान का फासला भी बढ़ चुका है, मगर इसके असरात शहर कायद पर वाज़े हैं। कराची को गहरे काले बादलों ने घेर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त तूफान के गिर्द 175 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 30 से 40 फुट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। सिस्टम के मरकज़ के अतराफ में समंदर में शदीद तुग़यानी इस वक्त देखने में आ रही है। कल तूफान केटी बंदर के नज़दीक होगा। शुमाल मशरिक़ की जानिब बढ़ते हुए कल शाम को इंतहाई शदीद समुद्री तूफान 100 से 120 और 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। 16 जून तक हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल सकती हैं। जुनूब मशरकी साहली पट्टी पर समुद्री तूफान पहुंचने के बाइस आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में आज से 16 जून के दरमियान आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। ठीक है सना, हमें अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया। बहरा अरब के समुद्री तूफान का रुख बदल गया है। बिपरजॉय कराची से 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि बिपरजॉय तूफ़ानी हवाएं जो हैं वहाँ चल रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि तूफ़ान का रुख बदल गया है। बिपरजॉय कराची से 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद हैं। मज़ीद इस पर क्या अपडेट्स हैं अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफ़ान से बचने के तमाम तर वसाइल जो हैं बरोए कार लाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है 30 फुट बुलंद इसकी लहरें भी हैं जो कि यहाँ समुद्र की तरफ बढ़ रही हैं और आप देख सकते हैं, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि रुख बदल गया है, हवाओं का रुख बदल गया है। बिपरजॉय जो है वो अब बदल गया है इसका रुख, और किस जानिब रुख इसका जाएगा वो बाद में हम आपको बताएंगे। तूफान का खतरा कराची में साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सी व्यू आने जाने वाले रास्तों पर साउथ पुलिस तीसरे रोज़ भी तैनात है। पुलिस के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक 23 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तूफ़ान बिपरजॉय के खदशात के पेश नज़र जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है और आज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस जो है वो यहाँ पर सी व्यू वाले रोड पर तैनात की गई है। रास्ते तमाम जो है वो बंद किए हुए हैं। सी व्यू जाने वाले SSP साउथ के अहकामात के ऊपर पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। मेरे कैमरामैन आपको मेरे हक़ में दिखाएंगे। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मोबाइल यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी जो है वो आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। दोनों साइड से ट्रैक्स को जो है वो बंद किया हुआ है। इस साइड भी जो है वो पत्थर लगा कर ट्रैक को बंद किया हुआ है, जबकि एक साइड पर जो है वो पुलिस की मोबाइल तैनात की गई है। बताया ये जा रहा है मुमकिन तौर पर जो है वो आज ये तूफ़ान जो है वो टकरा सकता है। और साथ ही साथ जो है वो SP क्लिफ्टन अहमद चौधरी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि तकरीबन जो है वो 23 लोग जो है इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की थी। दरख्शां और साहिल थाने में मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए गए उनके खिलाफ, और फिलहाल जो यहाँ पर आ रहा है और खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहा है उसको भी गिरफ्तार करने का अमल जो है वो जारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सी व्यू का रुख करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है पुलिस की जानिब से उसको यहाँ से वापस मोड़ा जा रहा है। यहाँ से किसी को आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है, जबकि जो खाली पुलिस है वो वही यहाँ पर जो है वो आ जा सकती है। उसके अलावा जो है वो कोई भी शहरी जो है वो सी व्यू के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है शहरियों की हिफाजत के लिए, और पुलिस जो है वो तकरीबन। अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी। बहिरा अरब के समुद्री तूफ़ान का रुख बदल गया है। बिपरजॉय कराची से 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है।
आपको बता रहे हैं कि बहीरा अरब के समुद्री तूफान का रुख बदल गया है। बीपर जॉय कराची से अब 275 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और सूरज की आंख मचोली भी जारी है। तुगयानी का भी खदशा है और लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बूंदाबांदी भी हो रही है और आज दोपहर में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बहीरा अरब के समुद्री तूफान का रुख बदल गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान बिपर जो है वो बिपर गया है। कराची के साहिल से समुद्री तूफ़ान 275 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जबकि ठट्टा के साहिल से जो है 285 किलोमीटर के जो है वो फासले पर रह गया है। इसी तरह केटी बंदर की बात की जाए तो केटी बंदर से इसका जो फासला है वो 200 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। तूफ़ान जो है इस वक्त शिमाल मशरक़ में मौजूद है, लेकिन कराची के साहिल से 275 किलोमीटर जनूब है इस वक्त मौजूद है। और आज जो है महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशगोई की थी, ताहम आज जो है समुद्री तूफ़ान केटी बंदर और गुजरात के साहिल से गुजरता हुआ यहाँ से जाएगा, जबकि पाकिस्तान की साहिली पट्टी को भी ख़तरा पहुँचाने के इम्कानात जो है महकमा मौसमियात ने बताए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 जून तक जो है बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश जो है आज भी अभी देखा कि हमने दो दरिया के मकाम पर इस वक्त मौजूद है। हल्की हल्की बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया था, तमाम सूरज की आंख मचोली भी जो है वो जारी है। माहीगीरों को भी 17 जून तक जो है समंदर में जाने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर सैर व तफरी के लिए वॉल पर मौजूद हैं और वॉल पर आके जो है सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा राबेल, ये भी बताइएगा कि क्या क्या इक़दामात किए गए हैं? लोगों का इनखला वहाँ से किया गया है, वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बुलंद बाला इमारत हैं और ज़्यादातर उनको जो है ख़तरा इतना लाहक नहीं होता जितना कि छोटी आबादी वालों के जितने छोटे घर होते हैं उनको ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है। इसलिए यहाँ पर सीबीयू के मकाम पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो है सारी की सारी बुलंद बाला इमारत हैं और इनको इतना जो है ख़तरा लाहक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अगर छोटे छोटे घर थे या छोटे वो थे तो उन्होंने जो है यहाँ से अपनी यहाँ से वो दूसरी जगह पर ट्रैवल कर चुके हैं। जी अच्छा राबेल, ये भी बताइएगा, ये इमारतें उन इमारतों में शामिल तो नहीं हैं जो 450 इमारतें जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर करार दिया गया था? नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल नई बुलंद इमारत हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और काफ़ी नई इमारत भी जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। लेकिन ये इमारत वो है जहाँ पर जो है लोग रिहाइश पजीर हैं और काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं और इमारत को जो है कोई इतना ख़तरा लाहक नहीं है। जी अच्छा राबेल, छोटी आबादियों में जहाँ लोग रह रहे थे उनको महफूज मकामात पर पहुँचा दिया, कितने लोग थे जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इब्राहिम हैदरी की बात की जाए तो वहाँ पर जो है काफ़ी कच्ची आबादी है और वहाँ के समंदर जो है बिल्कुल बस्ती से करीब है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से जो है सेफ मकामात पर जो है रवाना कर दिया गया है। जैसे कि अगर बदीन वगैरह की बात की जाए तो वहाँ से भी लोगों को किसी सेफ जगह पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा राबेल, ये भी बताइएगा कि कितना ख़तरा बताया जा रहा है इन आबादियों को जो छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ख़तरा तो बिल्कुल बताया जा रहा है क्योंकि तूफ़ान का जो रुख है वो बिल्कुल साहिली पट्टी से, पाकिस्तान की साहिली पट्टी से होता हुआ जो है केटी बंदर और गुजरात के साहिल से गुजरेगा। ताहम जो इब्राहिम हैदरी और इसके करीब मुबारक विलेज के जो इलाके हैं वहाँ पे जो आबादी रिहाइश पजीर है वहाँ पर जो है पानी जाने का जो है महकमा मौसमियात ने भी कल बताया था। DG मैट के से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर जितने छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर जो है पानी जा सकता है, उनको जो है ख़तरा लाक हो सकता है। जी राबेल, ये भी बताइएगा, पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी किस तरह से है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के जो है एहलकार है वो यहाँ पर बार बार जो है चेकिंग कर रहे हैं, बार बार लोगों को यहाँ से जो है यहाँ भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है पास नहीं आते। दफ़ा 144 भी नाफिज है। रेस्क्यू के एहलकार भी जो है यहाँ पर बार बार गश्त पर मौजूद हैं, लोगों को यहाँ से वॉल के पास से बिल्कुल दूर हटाते हैं। लेकिन उसके बाद यही है कि जैसी पुलिस एहलकार, रेस्क्यू एहलकार यहाँ से जाते हैं या फिर किसी दूसरी मकाम पर जाते हैं, जब तक जो है वापस से शहरी अपने इंजॉयमेंट के लिए इसी वॉल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जी ठीक है राबेल अशरफ, हमें अपडेट करनी थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तूफान बिपर जॉय के बायस समुंदर बिफर गया है। ऊंची लहरों के बायस चश्मा गोट, इलियास गोट, माड़ीपुर, हॉक्स बे रोड्स जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। पुलिस के मुताबिक टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेर आब आ गई है। इस वक्त समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताइएगा।
جی بالکل، سمندری طوفان بیپر جو ہے کراچی کے ساحل سے 200 کلومیٹر کے زائد کے فاصلے پر رہ چکا ہے اور اس کے اثرات جو ہے مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت ابراہیم حیدری جے ٹی پر موجود ہوں اور اگر میرے کیمرہ مین حسنین جعفری اگر آپ کو اس طرف دکھائے تو یہ جو پانی ہے یہ اچھل کر جو ہے باہر آ رہا ہے اور ساتھ ہی جو یہاں پر ماہی گیر ہیں اور جو یہاں پر مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ اس کے عادی ہیں تو وہ جو ہے نہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیسے سمندری طوفان شہر سے قریب ہوتے جائے گا تو اس کے باعث اس کے اثرات اتنے بھیانک ہوں گے کہ سمندر کی جو لہریں ہیں وہ باہر اچھل کر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ ہاکس بے اور ماڑی پور روڈ اور اسی طریقے سے سائنس پٹ، پیراڈائز پوائنٹ، ٹرٹل بیچ کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ رات جو پانی تھا سمندر کا وہ سڑکوں پر آ گیا تھا، ڈولفن چوک تک جو ہے پانی آیا تھا اور جیسے سورج پڑوان چڑھا تو ساتھ ہی سمندر کی لہریں جو ہے پیچھے ہو گئیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے ساحل کی جانب جانے والے تمام راستوں پر نفری جو ہے تعینات کیے، شہریوں سے جو ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ سمندر کی جانب نہیں آئیں اور اسی طریقے سے اسی حوالے سے بات کی جائے کہ کلفٹن کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہاکس بے سائڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ دیگر اداروں کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 200 کلومیٹر کے زائد کے فاصلے پر رہ چکا ہے سمندری طوفان بیپر جو ہے، جس کے باعث اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آنے لگے ہیں۔ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ چشمہ گوٹ اور الیاس گوٹ کے جو رہائشی تھے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ وہاں پر جو آبادی تھی ان کے جو گھر تھے وہ زیر آب آ چکے تھے، اس وقت جو ہے سمندر میں طغیانی ہے۔ تاہم دیگر اداروں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے احتیاط کریں، احتیاط برتیں کیونکہ یہ قدرتی آفات ہیں اور اس سے بچنے کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ کی جائیں۔ ممکنہ طوفان اور بارشوں کے پیش نظر فیلڈ ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی جائیں۔ صوبائی وزیر توانائی کی سندھ ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کے سی ای او کو ہدایت۔ امتیاز شیخ کہتے ہیں کہ فیلڈ ملازمین نوری آباد سے کراچی تک ٹرانسمیشن لائن کی حفاظتی اقدامات کے ساتھ گشت جاری رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کی سندھ ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کے سی ای او کو ہدایت کی ہے کہ متفقہ طوفان اور بارشوں کے پیش نظر فیلڈ ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں اور این ٹی ڈی سی نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا سرکولر بھی جاری کر دیا اور تمام فیلڈ ملازمین اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ سرکولر میں یہ کہا گیا ہے اور فیلڈ ملازمین نوری آباد سے کراچی تک ٹرانسمیشن لائن کی حفاظتی اقدامات کے ساتھ گشت جاری رکھیں گے۔ سی ای او نے یہ بھی کہا ہے اور نوری آباد کے ونڈ کوریڈور سے 100 میگا واٹ ٹرانسمیشن لائن ایس ٹی ڈی این کی ملکیت ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ونڈ کوریڈور سے بجلی کراچی کے الیکٹرک کو جو ہے سپلائی کی جاتی ہے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال میں ریسکیو کرنے کے لیے تمام فیلڈ ملازمین کی ڈیوٹی پر حاضری لازمی قرار دی گئی ہے اور وزیر توانائی سندھ جو ہے امتیاز شیخ نے کہا ہے کہ کراچی کو بجلی کی بلا تعطل سپلائی جاری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بیپر جوئے کے اثرات ہیں، بارش کے امکانات ہیں، شہر کے برساتی نالے صاف نہیں ہو سکے ہیں۔ کرنگی سیکٹر 34-2 بنگالی کیمپ کا برساتی نالا کچرے سے بھر گیا ہے۔ موسلادھ دھار بارش ہونے سے شہر کا نالا جو ہے وہ اوور فلو ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد حماد سے۔ جی بتائیے گا۔ کراچی شہر میں سمندری طوفان کے اثرات اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، لیکن ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی تک کراچی میں شہر کے جو مختلف مقامات پر جو 500 سے زائد چھوٹے بڑے نالے ہیں ان میں جو ہے کچرا موجود ہے جن کی صفائی اب تک نہیں کی جا سکی ہے، جس کی وجہ سے اگر تیز بارش ہوتی ہے تو نالا اوور فلو ہونے سے جو نالے کا جو پانی ہے وہ سڑکوں پر آ سکتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کرنگی سیکٹر 34-2 بلال کالونی سے جو ہے کرنگی 2.5 نمبر جانے والی سڑک پر، اور یہاں سے جو نالا گزر رہا ہے اس نالے میں جو ہے کچرے کا انبار لگا ہوا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے اس علاقے کے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کب جو ہے کتنے وقت گزر گیا کہ اس نالے کی صفائی نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے گا، نالے کی صفائی یہاں پر نہیں ہے، جو ہے کافی یہاں پر کچرا نظر آ رہا ہے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے اس سڑک کی اور اس نالے کی؟ السلام علیکم۔ جب بارش ہوتا ہے پانی جو ہے سارا ہمارا نالا روڈ کے اوپر بہتا ہے اور لانڈی 37 کا پانی بھی اسی روڈ سے اسی نالے سے گزرتا ہے، لیکن نالا صفائی ہوتا ہی نہیں ہے۔
आगे जो जमाटोन से पानी निकल जाता है, रोड भर जाता है, अभी तक रोड भरा हुआ है और यहाँ भी रोड टूटा हुआ है, ये आप देखें रोड टूटा हुआ है, ये भी इसका भी कोई मरम्मत नहीं है। मैं आगे जाके चल के देखा पिंडी करासीन का तरफ, वहाँ नाला सारा बना हुआ, यहाँ नहीं बना हुआ, यहाँ से 2-3 वो आगे से लेके इधर तक लांडी का तरफ कोई बना हुआ नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा, माजी में जो बारिशें हुई हैं, जब बारिश होती है तो उसके बाद इस सड़क की क्या सूरत हाल होती है? हमने देखा कि नाले में जो एक कचरे का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मशीनरी मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया गायब है, तो क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है? लोग यहाँ से कैसे गुजरते हैं? यहाँ पे घुटने का बराबर जो ना पानी हो जाता है रोड के ऊपर, बंदा यहाँ से गली से निकल जाता है, गली थोड़ा ऊँचा है, गली से निकल जाता है, रोड से जा नहीं सकता बारिश होता हो तो। आगे रोड पूरा 2 साल तक टूटा हुआ था, इस साल में थोड़ा सा मरम्मत किया, अब दोबारा खुदाई कर रहा है वो, अब दोबारा मरम्मत कर रहा है, बारिश का पानी में भरा हो रहा है। ये पानी जो है हमारे पास ये आते रहता है, पूरा ढाकना वगैरह, ये कोरंगी 2.5 नंबर रोड है, ये 34-2 से लेके 34-3 से लेके पानी भर जाता है नाला, तो जब भरता है हमारे रोड पे पानी आ जाता है भाई। अभी नाला साफ बिल्कुल ये हमारे साथ इस इलाके के शहरी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जो है कई साल गुजर गए लेकिन इस नाले की सफाई जो है नहीं हो सकी है। ना सिर्फ ये कोरंगी का नाला बल्कि कोरंगी में जितने भी छोटे बड़े नाले मौजूद हैं वहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, कोई मशीनरी कोई इंतज़ामिया हमने यहाँ पर नहीं देखी कि वो जो है बारिश के इस मौसम में जो है फौरी तौर पर इंतज़ामिया अलर्ट हो और जो है वो यहाँ नाले में जो मौजूद कचरा हो उसको निकाला जा सके। शहर में जो 500 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले हैं वहाँ पर कई जो है टन कचरा मौजूद है ताहाल, जो अब तक नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर बारिश हो जाती है तेज़ और अगर नाला ओवरफ्लो हो गया तो ये सारा जो नाले का पानी है वो सड़क पर आ सकता है, जिसकी वजह से शहरियों को का सामना करना पड़ सकता है। कराची में समुद्री तूफान और तेज़ बारिशों की पेशगोई के बावजूद बेशतर मखदूश इमारतों को खाली न कराया जा सका। कमिश्नर कराची के अहकाम के बावजूद मखदूश इमारतों के तरफ लगे पथारे भी न हटाए जा सके। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे। मोहम्मद माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुमकिन तूफ़ानी खदशे के बायस कमिश्नर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इस हवाले से अहकामात जारी किए कि मखदूश इमारतों को फिलफौर खाली करवा दिया जाए। साथ ही उन्होंने साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स भी हटाने का हुक्म जारी किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ इमारात को जो है वो खाली कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी इमारात भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग नकल मकानी को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने उनको मुतबादिल जगह फराहम करने का दावा भी किया, साथ में दीगर सहूलियात फराहम करने का भी दावा किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बंस रोड पर, जहाँ मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखा सके तो मेरे अकब में एक मखदूश इमारत मौजूद है जिसको खाली तो करवा दिया गया है, लेकिन इसके नीचे जो है वो पथारे लगे हुए हैं, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों ने वहाँ रेडियाँ लगाई हुई है। अगर तूफ़ान की सूरत में, बारिश की सूरत में यह इमारत खुदा न खास्ता गिरती है तो इस सूरत में जो है वो कोई हादसा सरजद हो सकता है, कोई जानी नुकसान सरजद हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों जो है वो इस हवाले से कोई एहतियात करने को तैयार नहीं है। SBCA ने वाज़े तौर पर बैनर भी अवेज़ा कर दिए हैं बहुत सी जगहों पर कि जो है वो इमारत को खाली कर दिया जाए ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। अहम खबर आपको देंगे। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आर्ट्स काउंसिल के बाहर आमने सामने आ गए हैं। कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त जारी है। कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आर्ट्स काउंसिल के बाहर आमने सामने आ गए हैं। कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आज इलेक्शन हो रहे हैं, शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इलेक्शन हो रहे हैं और दोनों जो हैं जमात इस्लामी के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। पुरुमीद हैं दोनों जमातें के मेयर हमारा ही होगा, लेकिन बज़ाहिर जो है अब फैसला लग रहा है, पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार रखी गई है। हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ वहाँ पर मौजूद हैं। जवाद, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के, वो आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आर्ट काउंसिल के मेन गेट पर ये मौजूद है। अंदर गोलिंग का अमल जारी है, जबकि बाहर जो कारकुनान के दरमियान है शदीद गर्मा गर्मी दिखाई जा रही है। इस मौके पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स के हालांकि भारी नफरी भी तैनात है और जब बात हाथापाई तक भी पहुंची थी कुछ लम्हात में तो
पुलिस ने फौरन बीच में आकर जो है वो उन्हें रोका था। इसके अलावा रेंजर्स भी यहाँ पे मौजूद है। एसएसपी साउथ असद रजा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। और पुलिस के जो दस्ता है उसे 8 कौंसल के गेट के सामने बाहर तलब कर लिया गया है, जबकि 8 कौंसल के मेन गेट के सामने अब टेंट लगाकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कारकुनान जो है वो आपे से बिल्कुल बाहर हो रहे थे, गुस्से के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है, अगर जब पुलिस का अमल मुकम्मल होगा तो इसके लिए जो है वो बर वक्त दस्ता भी तलब कर लिया गया है। पुलिस और रेंजर जो है वो इतराफ में नाफिज कर दी गई है, ताकि कोई भी ऐसी मशकूक सरगर्मी जो है वो बरोकार ना लाए जा सके। जी जवाद, ये भी बताइएगा कि नारेबाजी की जा रही है, क्या तासुर सामने नजर आ रहे हैं कि कौन जीत रहा है? कुछ तो तासुर होंगे। जी बिल्कुल, तासुरात तो दोनों जमातों के कारकुनान यही तवक्का कर रहे हैं कि उनका जो मेयर है वो अपना जो है वो आए। जमात इस्लामी चाहती है कि हाफिज नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब के हक में जो है वो नारे लगा रही है। जमात इस्लामी के कारकुनान मुसलसल हाफिज हाफिज के नारे लगा रहे हैं। उन्हें तवक्का है कि उनका मेयर आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वो बिल्कुल पुर उम्मीद नजर आते हैं। वो समझते हैं कि उनका जो नंबर गेम है वो पूरा है और अगला मेयर जो है वो भुट्टो का जियाला मुर्तज़ा वहाब होगा। तो दोनों तरफ से जो है वो उम्मीदों की किरण है, लेकिन देखना ये होगा कि किसकी उम्मीद पर पानी फिरेगा और कौन जो है वो मसनद मेयर पर बराजमान होगा। जी जवाद आसिफ बताएगा कि ये नारेबाजी जो है वो किस जमात की तरफ से पहले शुरू की गई? देखें, जो नारेबाजी है वो जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो पहले शुरू की गई थी, क्योंकि पहले इनमें काफ़ी फासला था। पीपल्स पार्टी के जो है वो मेन गेट के सामने मौजूद थे, जबकि जमात इस्लामी थोड़ा आगे जाकर मौजूद थे। लेकिन फिर जैसे ही सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल हुई थी, जब पुलिस भी थोड़ा साइड में हो गई थी, तो जमात इस्लामी के कारकुनान ने फौरन मेन गेट की तरफ रुख किया। तकरीबन भागते हुए उन्होंने रुख किया और नारेबाजी करना शुरू कर दी पीपल्स पार्टी के कारकुनान के सामने आकर, जिस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी जोश में आ गए और उन्होंने भी जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए नारेबाजी का आगाज कर दिया, जिसके बाद जो है वो दोनों जमातों के कारकुनानों के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी भी पाई गई, लेकिन पुलिस ने बीच में आकर जो है वो बीच बचाव कराया। जी अच्छा जवाद, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि नंबर गेम जो है वो काफ़ी डेंजरस भी होती जा रही है, कहेंगे क्या इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में तासुर ये सामने आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के नंबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और जमात इस्लामी के कम होंगे, क्योंकि बज़ाहिर नज़र आ रहा है 33 गैर हाजिर भी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। तो क्या इंतजामात किए गए हैं आने वाले अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से? देखें, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो है वो पुलिस की जो बख्तर बंद है, ये जो कैदी वैन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रेंजर्स के जो अहलकार हैं गाड़ियों पर, बाइकों पर, वो भी मौजूद हैं, जबकि एसएसपी साउथ असद रजा खुद इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपना मेयर लाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उनके नंबर गेम से पूरे हैं। इसके अलावा पुलिस की अगर हम नफरी की बात करें तो उसमें जो है वो खवातीन अहलकार भी मौजूद है, क्योंकि मखसूस नशस्तों पर काफ़ी खवातीन भी मौजूद है। तो अगर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी नागहानी सूरत पैदा होती है तो वो फौरन इससे निमट सकेंगे। और ये जो चारों अतराफ से 8 कुंटल को जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेर रखा है, ताकि कोई भी जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल में खलल पैदा ना हो सके। गेम जो है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो बस जश्न की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे हैं और इस बात पर वजीर है कि जैसे ही अंदर से खबर आएगी वो जो है वो ढोल की थाप पर रख भी करेंगे और मिठाई भी तकसीम करेंगे। जी जवाद आसिफ ने बड़ी अहम खबर हमें साथ साथ दी है। आंखों ही आंखों में जो है एक स्माइल भी है, खुशी भी है, चमक भी है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से और बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी का जियाला ही होगा, मेयर जियाला ही होगा। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी अभी तक पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। फैसला जो फाइनल आएगा तभी पता चलेगा कि मेयर का ताज किसके सर सजेगा। फिलवक्त अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। जवाद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, नंबर गेम थी और मेयर के लिए 184 वोट दरकार हैं और 366 कुल अरकान जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है दोनों जमातों की जानिब से, कांटेदार मुकाबला है आज जमात
इस्लामी और पीपल्स पार्टी का, लेकिन देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं, पूरे हैं, जमात इस्लामी के कम हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जवाद। कराची में तूफान की पेश गोई और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है, मुमकिन बारिशों की जो पेशन गोई की गई है, उसके बाद महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर हादसात की सूरत में जो अस्पताल लाए जाते हैं मरीज़, उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मेरे साथ डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जुमानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या क्या तैयारी की है, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना रोल जो उनका बनता है, उनका वेल डिफाइंड रोल है। हॉस्पिटल्स में जो है हेल्थ केयर जो है इस रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स आएंगे या इफेक्टी आएंगे उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलेगी। मेजर हॉस्पिटल्स कराची की जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इवन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वो ऑन बोर्ड हैं। इसके अलावा सातों डिस्ट्रिक्ट के DHOs ने अपने जो है कंटीजेंसी प्लान जो है वो भी सबमिट किया हुआ है, वो भी रेडी है। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। खुदा न खास्ता अगर बारिश ज़्यादा होती हैं, जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है, तो उस हवाले से हादसात की सूरत में या जो भी मरीज़ यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लाए जाएंगे उनको तमाम तर तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। उसके अलावा कराची की जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के DHO से भी राब्ते में, और ये जो इनके ऑफिस हैं ये भी 24 घंटे जो है वो काम करेंगे ताकि बारिशों के दौरान जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। और दूसरी जानिब वफाकी बजट से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, जी आगाह कीजिएगा। माली साल का बजट आ गया, अब सनअतकार इसको कैसा देखते हैं, क्योंकि जो डिमांड की गई थी उसके बरक्स कैसा बजट रहा है जानते हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के जो सदर हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस बजट को? देखिए, इस वक्त बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम था। उसकी वजह यह है कि IMF के साथ एक डील चल रही थी और पूरा बजट जो था वो डिपेंड हो रहा था कि अगर IMF ने पैसे दे दिए तो क्या पोजीशन होगी और अगर पैसे नहीं दिए तो क्या पोजीशन होगी। तो लोगों का मतलब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये टैक्सों की भरमार कर देंगे, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने इस बजट के अंदर गरीबों का ख्याल रखा। इस बजट में इन्होंने पेंशन वालों के ऊपर भी काम करा। इस बजट में इन्होंने सनअतकारों पे और बिजनेसमैनों के ऊपर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। तो ऑन द होल अगर आप देखें तो इन्होंने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने सीट के ऊपर वो रिबेट दे दी आपको। पेट्रोल कम इम्पोर्ट हो उसके ऊपर उन्होंने सोलर वालों को एक फैसिलिटेट कर दिया। तो अगर जिस तरह से इन्होंने फैसिलिटेट करा है ज़राअत को, और अगर हमने ज़राअत पे काबू पा लिया तो डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है वो ये ज़राअत बन सकती है और हमारी इंपोर्ट कम हो सकती है, क्योंकि हम तमाम ग्रेन्स तो ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो उन्होंने सूद का हजम रखा हुआ है कि आधा बजट जो है वो हमारा सूद में चला जाएगा। तो डॉलर आपका जितना सस्ता होगा उतनी आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। डॉलर आपका जितना सस्ता होगा उतनी आपकी जो सूद होगा वो भी कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डेफिसिट है अगर उसके ऊपर भी इन्होंने थोड़ा बहुत और काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाला कल अच्छा हो सकता है। तो ऑन द होल अगर देखें तो इन हालात के अंदर ऐसा बजट लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो इन हालात में जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट आया है। जी, जैसे कि आपने सुना कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाए, उसको खुशाइंद करार दिया है। और यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी का कहना है कि ऐसे इकदाम उठाने होंगे जैसे हुकूमत ने जो मराद दी हैं, अगर उसका फ़ायदा उठाया जाए तो दरामदी बिल कम होगा, जिससे रुपये की कदर में बेहतरी हो सके।